Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello viewers, this is Muhammad Adnan Anwar again with you, and I hope you guys are doing well. Okay, so in today's video, we're gonna discuss something, but before that, I would like to ask from you guys that have you ever taken NAPFC? I mean, have you ever had NAPFC? Do you understand? Have you ever eaten NAPFC? क्या आपने कभी NAPFC खाई है? नहीं खाई? Oh my gosh. अच्छा, if you belongs to Karachi, so you must have been to the Lucky One Mall. वहाँ पर एक Italian restaurant है. वहाँ आप जब कभी भी जाएं तो जाकर अगर दोबारा जाना हो तो वहाँ जाकर आपने NAPFC order करना है. That's a really delicious food as well. Okay, so in today's video we're gonna discuss little about the parts of speech and the verb as well. अच्छा, make sure that what is parts of speech and how many parts of speeches are there. Okay, कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. कोई कहता है 11 है, कोई कहता है 12 है, कोई कहता है 8 है, कोई कहता है 7 है. ठीक है, but the matter is that now I was kidding with you guys regarding the NAPFC कोई डिश नहीं है. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखने का एक तरीका है. And there are only 8 parts of speech. Number 1, NAPFC जैसे आपको स्क्रीन पर अभी शो हो रहा है, that's N for noun, A for adjective. Make sure that बहुत सारे लोग इसको adjective कहते हैं, but this not adjective, that is adjective, all right, because the D is silent. Okay, and P for pronoun, V for verb, A for adverb, P for preposition, C for conjunction, and I for interjection. Okay, so there are 8 parts of speech. Acha, make sure that in 8 parts of speech there is the one part of speech that is called verb, that is really very important in any kind of the sentences. Make sure that the sentences cannot be made without verb. Verb के बगैर कोई sentence नहीं बन सकता. So that's why we're going to discuss about in today's class about verb. Okay, so there are 2 types of verb, guys. How many types? 2 types. I'm not talking about right now regular, irregular, transitive, intransitive. We'll discuss it in another class. हम किसी और क्लास में इसको discuss करेंगे. We are discussing the verb 2 types over here. The number 1 type is that MV. MV stands for main verb. Then another HV. HV stands for helping verb. Helping verb का दूसरा नाम auxiliary verb भी होता है. Make sure that main verb के 2 बच्चे और हैं, but there's no children for helping verb. Okay, so there are 2 types of main verb. The number 1 is state verb, जिसे हम stative verb भी कहते हैं, sometimes non-progressive verb भी कहते हैं, and another is called action verb. Okay, so verb के कितने types हो गए? 2 types main verb and then helping verb. एंड हेल्पिंग वर्ब की कोई और टाइप्स नहीं होती. हाँ, इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब भी इसे हम कहते हैं. I'm sorry. Okay, next is that main verb. Main verb has got 2 types. The number 1 action verb, another one state verb. That is called sometimes इसे हम stative verb भी कहते हैं. Okay, action verb से क्या मुराद है? Like go, come, buy and wash, आना जाना खाना पीना रोना गाना हंसना. ठीक है, these are called what? The action verb. Okay, I'm eating food, I'm walking down the street, I'm going there, I'm talking to you, I'm writing a letter. These are called what? These are called action verb. Okay, अच्छा, अब क्या है? Let's talk about the helping verb. अच्छा, action verb. State verb की हम बात करते हैं. State verb क्या होते हैं भाई? Is, am, are, was, were, has, have, had. These are called what? State verb. अच्छा, state verb इतने ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं. Like अगर हम बात करें, understand is a non-progressive verb, like a stative verb. Love, stative verb. Like, stative verb. Okay, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Like अगर मैं यहाँ देखूँ, hate, stative verb. See, stative verb. Stative verb से क्या मुराद है कि इनकी 4th form नहीं बना सकते हम, यानी कि ing form we cannot make it. We cannot say I'm seeing you. We cannot say I'm understanding. All right, we cannot say I'm loving. Okay, but make sure that guys, there's a one thing कि अगर हमने अक्सर सुना है लवन इस्तेमाल करते हैं, तो मेक श्योर दैट कि लवन जब हम कहते हैं तो ये लव जो है अपनी मीनिंग क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है. ये चला जाता है एन्जॉय में. आई एम लविंग इट, मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. आई एम लविंग इट, आई एम लविंग बिरयानी. ओके, सो अपनी मीनिंग चेंज कर लेता है, जबकि एक्चुअल में लव की 4th फॉर्म नहीं होती. हाँ, वो एक केस में होती है, वो फ़िलहाल अभी मैं वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता. इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इट एंड देन सम टाइम
some another time I'll discuss about this. Okay, so understanding नहीं हो सकता, adoring नहीं हो सकता. These are called what? Non-progressive verb. Okay, दूसरी तरफ आते हैं help in verb. help in verb क्या? is, am, are, was, were, has, have, had. ठीक है. अच्छा, अब आप कहेंगे कि स्टेट वर्ब में भी ये डिस्कस किया था और इसमें भी ये डिस्कस किया, तो मेक श्योर दैट इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इनकी खासियत ये है कि सम टाइम इट बिकम्स हेल्प इन वर्ब एंड सम टाइम इट बिकम्स स्टेटिव वर्ब. ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस लेटर ऑन, अभी हम उसे भी डिस्कस करेंगे. सो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि the verb has got two types, main verb and helping verb. Main verb has got two types more, stative verb and action verb, and then there is no type of helping verb but there is another name of helping verb that is called auxiliary verb. Got it? अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा जुमले की तरफ. ठीक है, अच्छा, जुमले की तरफ आने से पहले एक बात और करते हैं. ठीक है, what is the work of a main verb in a sentence or helping verb in a sentence, or you can say the definition of that. So guys, the very simple definition is that main verb की अगर हम definition की बात करें, it tells about the time and meaning in a sentence. It tells about the time and meaning in a sentence. यानी कि main verb time के बारे में बताता है और meaning भी बताता है sentence के अंदर. जबकि if we talk about helping verb, it tells about the time only in a sentence. helping verb सिर्फ जुमले के अंदर time बताता है, जबकि main verb दो काम करता है, time भी बताता है और meaning भी बताता है. You got it? अच्छा, अब हम आते हैं आगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि is, am, are, was, were, has, have, had यहाँ पर as a main verb इस्तेमाल हुआ है या यहाँ पर as a helping verb इस्तेमाल हुआ है. हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. like I am a teacher. दूसरे जुमले में कहता हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज. ऑलराइट, पहले में कहा मैंने कि आई एम अ टीचर. क्या यहाँ पर कोई और मेन वर्ब है मौजूद? यहाँ पर कोई और वर्ब मौजूद है? नहीं. टीचर इज अ नाउन, राइट. आई इज अ प्रोनाउन. ठीक है, तो अब क्या बचा? सिर्फ एम. गॉट इट? ए इज एन आर्टिकल. ठीक है, अच्छा, बरकत. सो वाज दैट कि क्या बचा यहाँ पर? सिर्फ एम. तो एम क्या हो जाएगा? एज एन स्टेट वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल होगा. याद रहे, एम इज नॉट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हरगिज नहीं है यहाँ पर. एम दूसरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है. आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज. अब क्या है यहाँ पर? टीचिंग ऑलरेडी एक्शन वर्ब के तौर पर मौजूद है. ठीक है, तो एम क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा. आई हैव अ मोबाइल फोन. आई हैव अ mobile phone. Make sure that in American accent we tell mobile to mobile. Okay, I have a mobile phone. ठीक है, तो यहाँ पर कोई और वर्ब मौजूद नहीं है, तो हैव क्या हो गया यहाँ पर? एज एन स्टेट वर्ब हो गया, जिसे हम पोजीशन कहते हैं समटाइम. ओके, एंड आई हैव डन माई वर्क. अब आप यहाँ पर देखें, डू, डिड, डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, यानी कि एक्शन वर्ब ऑलरेडी है, तो हैव क्या हो जाएगा? एज एन helping verb हो जाएगा. Got it? So this is the complete scenario. Now let me proceed further. और अगर हम आगे चलकर आपको कुछ बातें बताते हैं कि भाई देखें कि मेन वर्ब जुमले में आपको टाइम और मीनिंग दोनों बताता है. अभी मैंने आपसे बात की थी. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, आई हैव डन माई वर्क. डन मीन्स क्या? करना. ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताती है भाई? अच्छा, डन हमेशा परफेक्ट में इस्तेमाल होगा. आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा किस में इस्तेमाल होती है? परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होती है. तो डन आपको एक चीज़ बताया इसने. ठीक है, यानी कि परफेक्ट, एंड द मीनिंग आपको साथ साथ बता रहा है. इसके साथ हैव क्या बताता है आपको? ये भी परफेक्ट बताता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है में क्या इस्तेमाल होता है? हैव एज एन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है. तो हेल्पिंग वर्ब ने आपको यहाँ पर क्या बताया? टाइम बताया. क्या बताया? टाइम बताया. जबकि मेन वर्ड आपको डन ये बता भी रहा है कि ये परफेक्ट है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, एंड देन मीनिंग बोथ. रिपीट कर दूं अगर कंफ्यूज हो रहे, दोबारा बता देता हूँ. आई हैव डन माई वर्क, जैसे हमने आपको पहले बताया कि मेन वर्ब टेल्स अबाउट द टाइम एंड मीनिंग बोथ. तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? एक्शन वर्ब के तौर पर डन. ओके, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव. गॉट इट? अच्छा, अब पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं. हैव हमेशा किस टेंस में आएगा आमतौर पे? प्रेजेंट में आएगा या पास्ट में आएगा या फ्यूचर में आएगा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. सिंपल, प्रेजेंट में, क्योंकि पास्ट में हैड आता है और फ्यूचर में विल के बगैर फ्यूचर बनता ही नहीं है. गॉट इट? अच्छा, तो इसका मतलब मेन वर्ब ने, हेल्पिंग वर्ब ने यहाँ पर आपको टाइम बता दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन वर्ब. मेन वर्ब डू, डिड, डन. वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं. किस में इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट. यानी कि एक टाइम तो उसने बताया हेल्पिंग वर्ब ने कि प्रेजेंट फॉर्म है, दूसरा क्या?
थर्ड फॉर्म क्या बता रही है? प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि दोनों ने मिलाकर टाइम बताया, एंड ऑल्सो द मीनिंग, डन मीन्स करना या कर चुका है कोई काम. Got it? So this is called the definition of a verb. Okay, make sure that verb has got two types: main verb, stay, and helping verb. Okay, so I hope you have understood the topic. So and you have got the topic completely. So if you would have any kind of question, you can ask me in below comments. तब तक के लिए next video के लिए इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.